شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، میری جماعت میں آپ کو خوش آمدید۔ اور بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے ہم نے شروع کر رکھا ہے باب ششم، جس کا عنوان ہے انسانیت کا ادراک اور معاشرتی شعور۔ یہ دونوں عنوانات اس باب کے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے سبق 6.2 شروع کیا تھا، اس کا پہلا لیکچر بھی پڑھا جو زبان شناسی کی فہرست سے لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے اس کا پہلا لیکچر پڑھا تھا، کون سے سبق کا؟ پائیدار عادات جو کہ بچت سے متعلق ہیں۔ آج ہم نے اس سبق کا دوسرا لیکچر پڑھنا ہے، اور بچوں آج کے سبق میں آج آپ کو سکھایا جائے گا کہ وہ کون سی عادات ہیں جو بچت سے متعلق ہے۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں، ہمارے آج کے حاصلات تعلم پڑھنا کی فہرست سے لیے گئے ہیں۔ نظم و نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھنا، یعنی آج ہم نے سیکھنا ہے پڑھنے سے متعلق درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادے، اشتہارات اور خطوط بانام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت ہی چھوٹی سی لیکن مزیدار اور دلچسپ سرگرمی کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں یعنی آج کے لیکچر میں آپ کیا کریں گے، معلم آپ سے کیا کروائیں گے، یہ دیکھتے ہیں۔ بچوں اس وقت ہم نے شروع کیا ہوا ہے باب ششم، لیکن باب اول سے پنجم تک کے کسی بھی سبق سے معلم عبارت منتخب کر کے طالب علموں سے بلند خوانی کروائیں گے، یعنی 3 سے 4 طالب علموں سے وہ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی سبق کا اقتباس آپ کو تفویض کیا جائے گا، ایک چھوٹی سی عبارت ہوگی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو درست تلفظ اور درست مناسب رفتار کے ساتھ اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے معلم کی بات کو بہت توجہ سے سننا ہے، کون سے سبق نمبر آپ کو کہتے ہیں، کون سے صفحہ نمبر آپ کو کہتے ہیں، آپ نے وہی نکالنا ہے اور اس عبارت کی بلند خوانی کرنی ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب پیارے بچوں، یعنی گزشتہ اسباق آپ نے بہت ہی توجہ اور لگن سے پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں اور بہت کچھ اس میں سے سیکھا بھی ہے، تبھی آپ نے درست تلفظ کے ساتھ تمام عبارات کو پڑھا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اپنے یعنی آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حاصلات تعلم میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پڑھنا کی فہرست سے لیا گیا ہے، یعنی آج کا جو ہمارا کام ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ تو جو آج ہم کریں گے وہ ہے جو ہمارے دونوں آج کے حاصلات تعلم ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے بچوں سبق پائیدار عادات جو بچت سے متعلق ہیں، آج اس کا پہلا نفس آپ کو پڑھایا جائے گا تاکہ طلبہ نظم و نثر کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے مصنف کی منشا اور مقصد کو بھی سمجھ سکے۔ یعنی مصنف اس سبق میں سبق 6.2 میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں، ہمارے بچے کن عادات کو اپنائیں اور وہ عادات ان کے لیے یعنی مستقبل میں مددگار ثابت ہوں گی۔ وقت کو ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن ہم اپنے متن کا آغاز کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ تو خاص الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیئے ناکام، کڑکڑاتی، کوسنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کے یعنی سبق 6.2 میں استعمال ہوئے ہیں۔ ذی شعور، سنگینی، متنبع، اختراز، کھپت، زیاں۔ معلم جیسے خاص الفاظ پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مفہوم بچوں میں نے ہر بار بتایا ہے، معلم بھی جانتے ہیں کہ جو کتاب ہے ہماری درسی کتاب ہے اس کے آخر میں ان تمام الفاظ کے معنی اور مفہوم موجود ہیں۔ معلم جیسے خاص الفاظ پڑھا لے، اس کے معنی اور مفہوم ضرور طلبہ کو بتائیں، انہیں کہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں تاکہ انہیں سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کے متن کی طرف۔ یہ ہمارے سبق کا پہلا اقتباس ہے۔ شدید گرمی کا موسم ہو، پسینے بہہ رہے ہوں، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے یا ایئر کنڈیشنز کے آگے ٹکے اپنا پسینہ خشک کرنے کی سعی ناکام میں مصروف ہوں اور اچانک بجلی چلی جائے۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو اور بجلی چلی جائے تو انسان یکدم پریشان ہو جاتا ہے۔ اب دوسری سطر ہے، آپ شدید گرمی کے موسم میں دھوپ میں جھلسے ہوئے گھر پہنچے، جلدی جلدی غسل خانے میں جا کر پانی میں فوارے کے نیچے سر دے کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں اور اچانک پانی بند ہو جائے
तब भी इंसान यकदम जो है वो परेशान हो जाता है। गर्मी के मौसम में पानी और पंखा एक ऐसी सहूलत है जो इंसान को सुकून देती है, और अगर आप बहुत शदीद गर्मी का मौसम हो, पानी भी ना हो, बिजली भी ना हो, तो इंसान की क्या हालत होती है, मैं और आप बआसानी समझ सकते हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में बिजली, पानी, गैस, ये ऐसी सहूलतें हैं जिसके बगैर अब हमारा रहना नामुमकिन है। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश में अपने में आप एक कप चाय बनाने के लिए चूल्हा खोलें और गैस नदारत यानी गैस ना हो, और आपका बहुत दिल चाह रहा हो चाय पीने को या हीटर चलाने को, तो गैस अगर ना हो तब भी इंसान क्या होता है, परेशान हो जाता है। उसको कोफ्त होने लगती है कि ये सहूलियात मुझे मुयस्सर आनी चाहिए मौसम की शिद्दत के मुताबिक। तो अगर ये सहूलियात ना हो, ये वो कुदरती वसाइल हैं बच्चों जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, बिजली बिजली पानी और गैस, ये इस वक्त की हमारी वो सहूलतें हैं, वो आसानियां हैं जिसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान और सहल बनाया हुआ है। और अगर ये ना हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, पानी ना हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज का जो हमारा वक्त गुजार रहा है उसमें बिजली अगर ना हो तो दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी के बावजूद भी हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया। तो ये वो सहूलतें हैं जिनकी हमने कदर करनी है, जिनको हमने बचा के रखना है, ताकि हम इनको इस्तेमाल करते रहे और इनके बगैर ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा है कि हमें इनके बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़े। यहाँ तक जैसे मैंने पढ़ा है, मौलम भी बच्चों को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे वो आदात अपनाएं जो इस सबक में मुसन्निफ ने बताई हैं। मुसन्निफ जो चाहते हैं कि हम इन आदात को अपनी ज़िंदगी का, अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे अपने मामूलात में शामिल कर ले। हमारा जो पहला निफ्स है वो मुकम्मल होगा यहाँ तक। वक्त गुजरने के साथ साथ तहकीक नए से नए दर खोलती जाती है। आज बिजली के ऐसे आलात बाजार में मौजूद है जो तवानाई की कम मिकदार इस्तेमाल करके हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। हमें ऐसे ही आलात को अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। ये आलात निस्बतन महंगे होते हैं लेकिन उन पर एक ही बार खर्च आता है, बाद में वो सालों तक हमारे लिए तवानाई बचाते हैं। बिजली के आलात की मुनासिब, ज़रूरी और मतवातर देखभाल भी तवानाई बचाने में मददगार साबित होती है। यहाँ तक पहला निफ्स मुकम्मल किया जाएगा, और पहले निफ्स को पढ़ते ही बच्चों आप समझ चुके हैं कि इस सबक में कौन सी आदात अपनाने की बात की जा रही है और किस किस्म की बचत की बात की जा रही है। यानी बिजली, गैस और पानी की बचत हमें करनी बहुत ज़रूरी है। मौलम जैसे ही पहला निफ्स मुकम्मल करें, ये एक सवाल दिया गया है, ये बच्चों से ज़रूर पूछें, वसाइल को ज़ाया होने से बचाना किस किस की जिम्मेदारी है और हम अपने वसाइल को किस तरीके से बचा सकते हैं। मैं कैसे बचा सकती हूँ बच्चों, आप कैसे बचा सकते हैं। आपने बहुत ही तवज्जो से सबक को सुनना है और उसके बाद इस सवाल का जवाब देना है। जैसे मौलम बुलंद ख्वानी कर लें, बच्चों को पढ़ने के लिए सबक दें, ताकि अगर इस सबक में कोई मुश्किल लफ्ज़ है जिसका तलफ़ुज़ अदा करना बच्चों के लिए मुश्किल है, तो बच्चों आपने अपने मौलम से पूछना है, लेकिन इजाज़त ज़रूर लेनी है, शोर नहीं मचाना है, और इजाज़त लेकर आपने वो लफ्ज़ पूछना है। बुलंद ख्वानी और सबक को समझाने के बाद क्या काम किया जाएगा वो देखते हैं। जैसे बुलंद ख्वानी मुकम्मल हो जाए तो मश्क में हमारी दरसी किताब की मश्क में एक सवाल है जिसके 4 मुमकिन जवाबात होते हैं। तवानाई के वसाइल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है, अवाम की है, दोनों की है, किसी की भी नहीं है। इसमें जो भी जवाब बच्चों आपको बेहतर लगता है, जो सबक के मतन के मुताबिक है, बेहतर नहीं लगता, जो सबक के मतन के मुताबिक है, आपने उस पर निशान लगाना है। जैसे ये है तो या तो इस दायरे को फिल कर दें या इसके ऊपर इस तरह निशान लगाएं, ताकि पता चले कि इन चारों में से ये दुरुस्त जवाब है। जल्दी से इस काम को मुकम्मल करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ, ताकि दोनों आज के हासिलात ताल्लुक आप मज़ीद अच्छे तौर पर सीख सकें। बहुत खूब, आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी सरगर्मियों की तरफ। हमारी पहली सरगर्मी हमारे पहले हासिलात तालीम से मुताल्लिक है, दुरुस्त लफ्ज़ और मुनासिब उतार चढ़ाव से इबारत को पढ़ना। एक अखबार का तराशा मैंने यहाँ पर नमूने के तौर पर लिया है। किसी अखबार से वसाइल की बचत के हवाले से तबीर इबारत मुंतखब करे और जोड़ियों की सूरत में दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़कर अपने साथी को सुनाए। मौलम इस तरह की मुख्तलिफ और भी इबारात जो है मुंतखब कर सकते हैं अखबारात में, रसाइल में, किताबों में से। तो मैंने बिजली का तवील तरीन ब्रेक डाउन, ये कॉलम, ये मजमून लिखा गया था 25 जनवरी 2023 में। बच्चों आपने क्या करना है, जोड़ियों की सूरत में बैठ के आपने अपने साथी को पढ़ के सुनाना है, आपका साथी आपको पढ़ के सुनाएगा, और आपने किस चीज़ पर
ध्यान देना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पर, यानी जब आपका साथी पढ़ रहा हो आपने उसके तलफ़्फ़ुज़ को बहुत ही तवज्जो से सुनना है, समझना है, और उसके बाद जब आपने भी पढ़ना है तो आपने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ जो दूसरे हाथ से तालीम से मुतल्लिक है। मुसन्निफ़ का मंशा और मकसद को समझना। इबारत है एक हमारे पास, बच्चों मैं पढ़ूंगी, आपने बहुत ही तवज्जो से सुनना है और इसमें आपने क्या करना है, मुसन्निफ़ का मंशा और मकसद को समझना है, और इस पर आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, मुनासिब रफ्तार का, दुरुस्त उतार चढ़ाव का, और इसके साथ जब ये सुन लें आप फिर आपने क्या करना है, खुद से इसको पढ़ना है और मुसन्निफ़ का मकसद बयान करना है। हमारे मुल्क में कई सालों से लोड शेडिंग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। गर्मियों में तो ये मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जबकि सर्द मौसम में भी कभी कभार मुख्तलिफ वजूहात जैसे बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को गैस की तरसील में कमी या मुरम्मत की वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ जाता है। एक तरफ जहां हुकूमत तवानाई के बहरान पर काबू पाने पर काम कर रही है, आप भी तवानाई की बचत के जरिए सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे घर के बरामदे में बरकी रोशनियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ तवानाई की बचत करने वाले LED बल्ब लगाकर सालाना तकरीबन 500 रुपये फ़ी बल्ब बचाए जा सकते हैं। बल्ब इतने ही लगाने चाहिए जितनी रोशनी की ज़रूरत हो। गैर ज़रूरी लाइट्स बिजली के बिल में इजाफे का बाइस बनेंगी। घर के बैरूनी हिस्सों में जहां जहां बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां रात के औकात में रोशनी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोलर आलात इस्तेमाल करें। दिन के वक्त सोलर बल्ब और दीगर सोलर आलात को चार्ज करें और रात के वक्त जला दें। आम एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स की जगह इन्वर्टर एयर कंडीशंस और इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर खरीदें। कीमत का फ़र्क आप एक सीज़न में बिजली के बिलों में फ़र्क के ज़रिए बराबर कर लेंगे। इसके अलावा घर के किसी भी हिस्से में फालतू बल्ब या पंखे खुले देखें तो उन्हें फ़ौरन बंद करें। बिलखसूस रात को सोने से पहले गैर ज़रूरी तौर पर चलने वाले बरकी आलात बंद कर दें। जी बच्चों, इबारत सुनकर आप इस बात का अंदाज़ा तो लगा चुके हैं किस किस्म की बचत की बात हो रही है, बिजली की बचत की बात हो रही है, और कौन से तरीके बताए जा रहे हैं वो भी आप समझ चुके हैं, और ये तरीके अपनाने मौजूदा वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने दोबारा इस इबारत को पढ़ना है। मेरा पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप मुनासिब रफ्तार देख सके, उतार चढ़ाव देख सके कि किस तरीके से आपने इबारत को पढ़ना है, और इसमें मुसन्निफ़ का मंशा और मकसद आपने अब बयान करना है। या तो जोड़ियों की सूरत में कर ले या मुअल्लिम से इजाज़त ले और क्लास में सब अपने हम जमातों को बताएं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने दोनों ही सरगर्मियाँ बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दी हैं, यानी दुरुस्त लफ्ज़, रवानी, उतार चढ़ाव को आप बहुत अच्छे तौर पर समझ चुके हैं। बढ़ते हैं घर के काम की तरफ कि आज आप घर जाकर कौन सा काम करेंगे, और आज का काम बहुत ही मज़ेदार है। हमारे पास एक वर्कशीट है जो आपको घर के काम के तौर पर दी जाएगी। वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेसन प्लान भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। एक इबारत है इस वर्कशीट में लिखी हुई है, आपने क्या करना है, दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से इसको पढ़ना है और वीडियो रिकॉर्ड करनी है। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा कि पहले इसको तवज्जो से पढ़ लें, ताकि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो बार बार आपको पॉज ना करना पड़े, बार बार आपको ये वीडियो रिकॉर्ड ना करनी पड़े। 1 से 2 बार इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करें। और इसमें आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी का, इस तरह आपने पढ़ना है। ये है आपका काम। आज का काम बहुत ही आसान है, यानी आज आपको तहरीरी काम नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। मुझे आपने बताना है कि आपने आज के लेक्चर में क्या नई बात सीखी, किस किस्म की बचत की बात हो रही है, तो और क्या ये जो बचत है ये आपने अपनी आम जिंदगी का हिस्सा बनाए ही है या नहीं बनाए हैं। इन मामूलात को आप अपनी ज़िंदगी में आप इन्हें अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन आदात को अपनाए हैं या नहीं अपनाए हैं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे इस सबक एक दूसरे लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।